खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। दिल में हो दया, मुख में मधुर वाणी, दिल में हो दया, मुख में मधुर वाणी, मन में हो सद्भाव, ये सच्चे योगी की निशानी, मन में हो सद्भाव, ये सच्चे योगी की निशानी। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, सुख दुख फिर होंगे समान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन, ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन, ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन, ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ओम शांति भाई, वेलकम भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। Welcome to Lagos family. We are happy to see you. भाई जी आपका म्यूट है। इटली से है, लंदन से है, घाना से है और लेगोस से है और भारत से भी जुड़े हुए। थैंक यू भैया। ओम शांति। अंतरराष्ट्रीय क्लास हो गई आज तो देखिए। हाँ जी। अभी हम भाई जी का थोड़ा परिचय सुनेंगे। Brother Piyush is a zonal coordinator of scientist and engineers wing और भाई 35 years से ज्ञान में है और मंथन ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लोधी रोड न्यू दिल्ली में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सिस्टम
and computer programming, or Masters in Business Administration with HRD specialization, Human Resource Development. And brother is a Raj Yogi, management tutor, author, mentor, trainer, and public speaker. और भाई जी फ्रिक्वेंटली टेलीविजन पे भी अपना टॉक देते हैं और रेडियोज में भी टॉक देते हैं और ऑथर भी है 400 आर्टिकल्स ऑन न्यूमरस themes such as management, meditation, spirituality and current affairs है और deliver lectures on different aspects of management such as self-management, leadership, innovative thinking, mind mapping, time management, harmony in relations, stress-free living, change management, meditation as medicine, personality development, leadership attitudes, and often visits as a guest faculty to Central Bureau of Investigation, CBI Academy, Ghaziabad, UP, National Thermal Power Corporation Limited, that is NTPC, Engineers India Limited, EIL, Delhi Metro Rail Corporation Limited, DMRC, until now has conducted more than 1500 seminars with various colleges, schools, universities, industries, banks, hospitals, and public sector undertakings, central and state ministries, and jails, etc. And corporate clients include Oil India Limited, GAIL India Limited, Airport Authority of India, India Meteorological Department, Central Public Works Department, Indian Railway, Northern Railway, India Renewable Energy Development Agency Limited, Steel Authority of India, Bharat Heavy Electricals Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and then Kazaria Ceramics, Indraprasth Gas Limited, Delhi Development Authority, Indian Oil Corporation Limited, All India Institute of Medical Science, Indian Institute of Technology, Hindustan Unilever Limited, Tata Group, NEET, Banaras Hindi University, National Disaster Management Authority, and participate in 8 out of total 10 disaster management campaigns organized by scientists and engineers wing across India, and represented Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya in various local and national conventions, and also presented papers. And he has been also conducting bhattis and classes for BKs all over the country, and also conducts public programs like today we are going to listen on Khushnuma Zindagi, Jeevan Jeene Ki Kala. So, and other topics are वाह जिंदगी वाह, खुशी और तनाव आप स्वयं करें चुनाव, व्यापार बढ़े कैसे तनाव घटे कैसे. तो आज हम सुनेंगे खुशनुमा जीवन जीने की कला भाई जी से. ओम शांति भाई जी, वेलकम अगेन. ओवर टू यू भाई जी. ओम शांति. बाबा का कितना धन्यवाद करें कि बाबा ने हमें खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखा दी है. आपको आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, परफेक्ट. थैंक यू बाबा. तो बाबा का बनना माने ही खुशनुमा जीवन. इसलिए बाबा बहुत बारी मुरलियों में बोलते हैं, बच्चे ये गीत गाओ, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली. तो बाबा ये गीत मुरलियों में बहुत बारी सुनाते हैं. हमने बहुत बारी सुना है ये गीत. हमने बाबा के बच्चे बनने से पहले भी सुना, लेकिन अभी बाबा ने कहा बच्चे इस गीत को अर्थ सहित आपको गाना है, क्योंकि दुनिया में तो किसी को क्या मिलेगा. चलो कोई मकान मिल गया, कोई दुकान मिल गया, या कोई नौकरी मिल गई, लेकिन वो भी तो क्षणिक है ना. नौकरी मिल गई है तो नौकरी जा भी सकती है, लेकिन यहाँ हमें स्वयं भगवान मिल गए. तो आज सारे दिन, इस सारे महीने, इस पूरे सप्ताह ये गीत हम अपने दिल से गाएंगे
एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी। ये बहुत प्यारा गीत है, ये हमारे दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए। तो आप देखेंगे सचमुच आपका जीवन खुशनुमा हो जाए। कुछ नहीं करना है, खुशी बहुत सहज है, लेकिन हमने उसको बहुत कठिन बना दिया है, सोच सोच के। तो अब हमें सोचना नहीं है, बस बाबा मिल गए, ये हमें दिल से स्वीकार कर लेना है, मुझे कौन मिला है। ठीक है, जिनको ओम शांति भाई जी। Yes, stuck हो हाँ जी, ऑडियो और वीडियो दोनों स्टक हो गए। और मुझे कुछ चाहिए नहीं। और फिर दूसरा गीत कौन सा है? किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये भी बहुत प्यारा गीत है। बाबा की मुरलियों में पहले ये गीत बजा करते थे, बाबा ने इन गीतों का चयन किया विशेष। तो ये भी गीत हमें सदैव गाना है। किसी ने अपना बना लिया मुझको। किसने बना लिया? बाबा ने अपना बना लिया, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारी दुनिया का पिता है, जो सारी दुनिया का क्या कहेंगे, सारी दुनिया जिसके अधीन है, सारी दुनिया जिसको याद करती है, वो मुझे याद करता है। आप सोचिए, एक बारी कहते हैं कहीं एक कोई भक्त अपना भगवान की कोई डायरी लेकर के उसमें कुछ नाम लिख रहा था। तो वहां से कोई अच्छे भक्त जिनको बाबा कहते नारद हैं, मीरा हैं, ये वहां से गुजरे। तो कहा क्या कर रहे हो, पूछा। तो वो देवदूत था। तो कहा ये डायरी है और मैं इसमें उन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को याद करते हैं। ध्यान से सुनना, आपने शायद ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन बार बार सुनना अच्छा लगता है इस कहानी को। बाबा दोनों ही भक्तों को बहुत याद करते हैं, नारद को भी और मीरा को भी। तो देखा है कि देवदूत डायरी लेकर के बैठे हुए हैं और उसमें कुछ लिख रहे हैं। तो पूछा क्या लिख रहे हो? नारद ने, मीरा ने पूछा। कहा हम उन व्यक्तियों के नाम लिख रहे हैं जो भगवान को याद करते हैं। तो पूछा भाई हमारा नाम कहीं इसमें है? ऐसे में तो नाम है ही नहीं। खैर बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों के बाद देखा फिर वो देवदूत आए और वो फिर से एक डायरी दूसरी लेकर के आए, फिर से उसमें नाम लिख रहे हैं। तो फिर नारद ने, मीरा ने पूछा क्या कर रहे हो देवदूत फरिश्ते? तो कहा मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सूची बना रहा हूँ उनकी जिनको भगवान याद करते हैं। तो पूछा उन्होंने हमारा नाम है? कहते हाँ आपका नाम तो सबसे ऊपर है इसमें। तो खुशी का सबब क्या है? मुझे खुशी कब मिलेगी, प्रसन्नता कब मिलेगी? कि भगवान मुझे याद करते हैं। अब देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको तो सारा भारत जानता है, शायद विश्व में भी बहुत लोग जानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी किनको जानते हैं? तो बाबा मुझे जानते हैं, भगवान मुझे जानते हैं। ऐसे अपने आप को नशा, भगवान ने जब सवेरे सवेरे परमधाम से अपनी नजर इस धरती पर दौड़ाई तो उनकी नजर मेरे ऊपर आके टिक गई। नशा, बाबा मुझे याद करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो कितना सुंदर गीत बाबा का बना हुआ है। तो सवेरे सवेरे यदि सचमुच हमें खुशनुमा जिंदगी चाहिए तो हम सवेरे सवेरे उठ करके बाबा के साथ बहुत प्यार से, बहुत भावनाओं से, बहुत श्रद्धा से गुड मॉर्निंग कर ले बाबा। हमारे दिन की शुरुआत बाबा के साथ होनी चाहिए। और यदि मुझे खुशनुमा जीवन चाहिए, और खुशनुमा जीवन को छोड़िए खुशनुमा दिन चाहिए,
है। खुशनुमा जीवन तो सारा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? खुशनुमा दिन। और खुशनुमा दिन की शुरुआत कहाँ से होगी? खुशनुमा संकल्प। तो सवेरे सवेरे हम उठ के चेक करें कि आज मेरे संकल्प कौन से रहे। कई भाई बहने थोड़ी इधर उधर की बातें, दुनिया की बातें, संसार की बातें वो सब देख लेते हैं। तो उसको देखने से क्या होता है? थोड़ी हमारी खुशी थोड़ी सी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे अब उन सब बातों को मुझे नहीं देखना है। वो बातें मैंने बहुत देखी, 63 जन्मों से देख रहा हूं, लेकिन कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्योंकि बाबा ने कल मुरली में बोल दिया बच्चे ये सारा असार संसार है। याद आई कल की मुरली आपको? कल बाबा ने वरदान में बोला ये तुच्छ संसार है, ये असार संसार है। तुच्छ समझते हैं? एक होती है स्वच्छ बुद्धि, एक होती है तुच्छ बुद्धि। तुच्छ माने टेस्टलेस, इसका कोई महत्व नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने बोला बच्चे इस भंबोर को आग लगने वाली है। याद आई आपको? भंबोर ऐसे हिंदी में शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता दुनिया वाली, लेकिन यदि आप भंबोर का अर्थ देखेंगे ना तो आता है घास फूस का ढेर। तो बाबा कहते बच्चे दुनिया कैसी है? ये घास फूस का ढेर है और मैं इसको प्यार कर रहा हूं, तो कहां से खुशी आएगी? तो खुशनुमा जीवन कब आएगा? जब मुझे कहां जाना है, मेरी दुनिया, मेरा संसार। तो बाबा कहते बच्चे एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। मुक्ति भी याद रहेगी, भाई परम धाम जाना है, अपने घर जाना है। ईस्ट और वेस्ट कहते हैं होम इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। आप सारे संसार में घुमाइए, 5 स्टार होटल में रहिए, डीलक्स होटल में रहिए, लेकिन घर आके कहते हैं सुकून मिल गया। तो आज हमारे चेहरे पर खुशी क्यों गायब होती है? क्योंकि हम सारी दुनिया में यहाँ वहां घूमते रहते हैं, लेकिन अपने घर नहीं जाते। तो बाबा ने बोला बच्चे ये दुनिया है गेस्ट हाउस और आपका घर है रेस्ट हाउस। तो मुझे रेस्ट हाउस में रहना है ना। रेस्ट कहाँ मिलेगा? रेस्ट हाउस में रेस्ट मिलेगा। तो खुशनुमा जीवन कब होगा? जब कोई काम करना है तो भले इस दुनिया में आए, कोई काम करना है तो इस देह में आए, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ फिर अपने रेस्ट हाउस चले गए। मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। अगर इस दुनिया को देखेंगे तो हमें कभी भी खुशी मिल नहीं सकती है, क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इस दुनिया में वो सब दुख के समाचार हैं। कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बहुत ठंड पड़ रही है, कहीं बहुत बर्फबारी हो रही है, कहीं बहुत बरसात हो रही है। तो चूंकि बाबा ने बोला है बच्चे दुनिया ही कौन सी है? दुख धाम। देखो नाम ही कैसा है। तो मैं दुख धाम को याद ही क्यों करूं? मुझे याद ही नहीं करना दुख धाम। बाबा कहते इस दुनिया का नाम ही है मृत्यु लोक और मैं खुशनुमा जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूं। तो मुझे इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया को याद करना है। ये संभव हो सकता है कि रहूं इस दुनिया में और याद उस दुनिया को करूं? हो सकता है सुब्रत भाई? पॉसिबल? जरा अपना वीडियो ऑन करें सुब्रत भाई, अपने आप को अनम्यूट करें, पूछो जरा, रहूं इस दुनिया में और याद उस दुनिया को करूं, ये कैसे संभव होगा? बताइए। रोजी बहन, रोज माने गुलाब, हम तो दिल्ली में देखने गए हैं। बाबा ने कहा है ना, बाबा उस बगीचे को बहुत याद करते, मुगल गार्डन का माली। वो हमारे लोधी रोड सेंटर से बहुत नजदीक है, तो हम हर वर्ष वहां पिकनिक करने जाते हैं। रोजी बहन सुनती है मेरी बात? आपने मुगल गार्डन देखा दिल्ली का, रोजी बहन? नहीं भैया, मैंने नहीं देखा। आप आओ दिल्ली। जी, मैं वैसे माउंट आबू गई हूँ, लेकिन वहाँ दिल्ली में ORC गई हूँ। आप दिल्ली आओ, हमारे पास लोधी रोड
तो लोधी रोड से बिल्कुल नजदीक है मुगल गार्डन। बाबा उसको मुरली में याद करते हैं। बच्चे मुगल गार्डन के माली को बड़ी तनख्वाह मिलती है क्योंकि वो फूलों की संभाल अच्छी करता है। मैं वहां हर वर्ष जाता हूँ, भाई बहनों को भी ले जाते हैं। तो वहां हमने 100 प्रकार के गुलाब देखे, 100 वैरायटीज ऑफ रोजेस। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीला, कोई पीला, कोई सफेद, कोई पिंक। इतना सुंदर, मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ रोजी बहन कि मैं इस दुनिया में रहूं और उस दुनिया को याद करूं, ये कैसे हो सकता है? आप चिंता में नहीं आना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आज का विषय ही है खुशनुमा जीवन। रोजी बहन, मैंने आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछा? हाँ बताइए। एक मिनट, नहीं। अब नकल तो मार नहीं सकते, अकल से सुनाना पड़ेगा अभी तो। हाँ जी जी भैया, नहीं नहीं, रोजी बहन बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। अब इस दुनिया में रहूं और उस दुनिया को याद करूं, ये कैसे संभव होगा? नहीं भैया, नहीं नहीं हो सकता तभी तो चेहरे को मुस्कुराहट कैसे आएगी? ये दुनिया तो दुखों वाली है जी। अगर सुख लेना है तो सुख वाली दुनिया को याद करना होगा। हाँ, सुख वाली दुनिया को याद करना पड़ेगा। मनीष भाई, आप तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हो? मनीष भाई बोलिए, अनम्यूट करें, अनम्यूट योरसेल्फ। ओम शांति। ओम शांति। इस दुनिया में रहूं और उस दुनिया को याद करूं कैसे? तब तो खुशी आए ना, खुशनुमा जीवन तभी तो होगा। बोलिए। बाबा बोलते हैं ना, अमृत वेला में बाबा को याद करना है, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर शाम नुमा योग। तो उसमें तो हम आत्मा अपने को समझ के याद करते हैं, पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जैसे भाई जी धंधा दौरी शुरू होता है, कहानी खत्म हो जाती है। शाम को याद आता है कि पूरे दिन में याद ही नहीं किया बाबा को। वो है, हमारे मनीष भाई ने दिल का हाल ठीक ठीक सुनाया है। भाई ताली तो बजाओ, सच तो बोला कम से कम। तो मनीष भाई 2021 में स्माइलिंग फेस, नो डाउट, ही ऑलवेज हैज स्माइलिंग फेस, इवन एट वर्क। धंधाधोरी में भी होता होगा, नहीं? थैंक यू बाबा। हमारी कमलेश बहन आपकी गारंटी ले रही है। थैंक यू बाबा। मैं इनको ऐसे ही देखती हूँ जैसे आप देख रहे हैं, कभी कभी दर्शन होते हैं। अच्छी बात है। अब जरा खबर तो लूं पहले मनीष भाई। सुनने को बहुत मिलता है, सुनने को मिलता है। मनीष भाई से पूछता हूँ, मनीष भाई जी, आप 2021 में, आज जनवरी पूरी हो गई, 1 महीना पूरा और 2 दिन ये निकल गए। तो अब बताओ, कोई पूरे 2021 में अमृत वेला नागा हुआ? जी, आज ही मिस हुआ भाई जी। ये देखो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। लाइट हाउस कैसे बनेंगे? आप लाइट हाउस में रहते हैं और अमृत वेला मिस करते हैं, तो गड़बड़ी कर रहे हैं मनीष भाई। आज से अपनी डायरी लिख दो। मन का संबंध बाबा से है, लेकिन काम का प्रेशर इतना होता है, मिस हो जाता है। रात को प्लान किया था कि आज 3 बजे उठ के जो बोला था कि पांडव भवन का विजिट होगा गौतमी बहन ने, लेकिन सीधा 5:15 बजे नींद खुली। सुनो मनीष भाई, एक कहावत है इंग्लिश में, those who are busy only they can take time out। तो खाली है उनको तो टाइम की वैल्यू नहीं, क्योंकि मनीष भाई इज वेरी बिजी, सो ओनली यू कैन टेक टाइम आउट। तो मनीष भाई, आज चूंकि आपका अमृत वेला मिस हुआ है, तो आप अपने आप को स्वयं ही पनिशमेंट देना, दंड देना। क्या दंड देंगे? 1 घंटे मुझे एक्स्ट्रा योग आज करना, टाइम निकालना है, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे लंच के टाइम, और अगर संभव हो तो 1 टाइम का भोजन मुझे मिस करना है। मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं। ठीक है भाई जी, मैं 1 महीने से डाइटिंग पे हूँ, मैं खा ही 1 टाइम रहा हूँ। अच्छा, 1 ही टाइम खाते तो फिर मिस नहीं करना। अभी 1 महीने से डाइटिंग शुरू किया है। अच्छा, डाइट पे चल रहे हैं। तो मेरा भाव क्या है कि जब हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, तो फिर हमारा अमृत वेला कभी नागा नहीं होता है। क्योंकि बाबा मुझे बनाने आए हैं बेदाग, और अमृत वेला मिस माने आत्मा में दाग पड़ गया। मुरली मिस
माने आत्मा में दाग पड़ गया। घोषाल बहन 2021 में कोई मुरली नागा हुई? सच नहीं, बोल। मुरली मिस नहीं होती है, अभी आपसे क्लास मिस होती है, मुरली मिस नहीं होती। मनीष भाई आपकी बात चली गई, अभी घोषाल बहन से पूछ रहा हूँ। नहीं भाई जी, 2021 में एक भी हम अमृत वेला मिस नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा पुरुषार्थ हुआ है। मैं 3 बजे हर रोज 3 बजे से बैठ जाती थैंक यू हूँ। बाबा, जरा ताली तो बजाओ। ये है खुशनुमा जिंदगी जीने की कला कि मेरा एक दिन भी बाबा की मुरली ना गाना। बाबा की मुरली से खुशी मिलेगी ना। और दोबारा हमें ये बोलना है उनकी तबीयत खराब नहीं है, वो तो ठीक है, उनका रथ ठीक नहीं है। क्या बोलना है आज से? वो तो ठीक है, आत्मा जी, रथ चमक रही है। ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ घोषाल बहन की आत्मा यहाँ चमक रही है। आत्मा इज ओके, लेकिन क्या ओके नहीं है? गाड़ी ओके नहीं, रथ ड्राइवर इज परफेक्ट, कार इज नॉट ओके, तो कार ओके हो जाएगी, क्या चिंता है? ठीक है सोना बहन। और हाँ कभी जी, नुमा शाम का योग कभी मिस किया घोषाल बहन? हाँ जी, हो जाता है क्योंकि घर का काम रहता है तो बीच बीच में, लेकिन कोशिश करती हूँ जैसे मिस ना हो। लक्ष्य रखो, खुशनुमा जीवन जीने की यही क्योंकि कला है। एक्चुअली यहाँ घाना में कुछ कोविड की केसेस बढ़ रही है, तो मुझे कल से फोन आना स्टार्ट हो गया कि आप नुमा शाम के योग में सबको साकाश किया करो। तो इसीलिए मैं नुमा शाम को मिस नहीं करना चाहती हूँ और हमेशा बैठ के साकाश नियम बनाइए, क्योंकि खुशी और कहीं दुनिया में हमें मिल नहीं सकती है। खुशनुमा जीवन होगा जब सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा। खुशनुमा जीवन होगा जब बाबा की मुरली शुरू हुई उससे पहले हाजिर हो गए। देखो मुझे 35 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में, एक दिन भी मैं बाबा की मुरली नागा नहीं कर सकता। मैं 3-4 बारी मुरली पढ़ लेता हूँ, एक दिन भी मैं बाबा का अभी सब भाई जी के लिए ताली बजाएंगे। नहीं, तो काम नहीं है मेरे बाबा। और मैं नुमा शाम का योग भी कभी नागा नहीं करता हूँ, क्योंकि दादी जानकी जी ने मुझे बता दिया नुमा शाम का योग माने वो भी छोटा अमृत वेला है। तो आप नियम बना लें, जैसे दुनिया में नियम बनाते हैं ना, तो बाबा कहते नियम में बल है, कायदे में फायदा है। तो बात चल रही थी कि हम रहे इस दुनिया में और याद उस दुनिया को कैसे करें। देखो वो संभव है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए आप बैठे हैं नाइजीरिया में, राइट? आप नाइजीरिया में हैं मनीष भाई, राइट? और जी नाइजीरिया में। और मैं दिल्ली में भारत में बैठा हूं, ठीक है मनीष भाई? अब नाइजीरिया के हाई कमिश्नर यहां भारत में है, जी राइट घोषाल बहन? जी जी। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर कहाँ है? भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चाणक्यपुरी में रहते हैं, लोधी रोड के पास है। उसको डिप्लोमेटिक एनक्लेव कहते हैं, राइट मनीष भाई? ठीक है। तो अब वो जो हाई कमिश्नर हैं नाइजीरिया के, वो रहते हैं दिल्ली में, रहते हैं भारत में, और बात कहाँ की करते हैं? बोलिए मनीष भाई। नाइजीरिया की बात करते हैं, लेगोस की बात करते हैं, नाइजीरिया की। समझो भारत में कोई कष्ट आ गया, कोई मुश्किल आ गई, उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरी नौकरी तो सेफ है। तो आप देखिए हमसे तो वो हाई कमिश्नर होशियार निकले कि दिल्ली में रह के लेगोस की बात करते हैं। तो क्या मैं इस पुरानी दुनिया में रह के अपनी नई दुनिया की बातें नहीं कर सकता हूं? कमलेश बहन आप बताइए, अनम्यूट करें कमलेश बहन। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमसे तो एडवाइजर होशियार निकले। अब दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहते हैं, राजदूत रहते हैं। दिल्ली में कोई चोरी हो गई, कोई बम गिर गया, उनको कोई परवाह नहीं, वो खुश हैं, तो उनको पता है मेरी नौकरी तो पाकिस्तान से चलने वाली है। तो बाबा कहते बच्चे आप रहो इस दुनिया में, लेकिन आपको बात उस दुनिया की करनी है। यहां तो केवल मेरा तन है,
लेकिन मेरा मन कहाँ है? मेरा मन उस दुनिया में है। तो आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। फिर यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, यहाँ की महंगाई, यहाँ का बजट, किसी भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। इसलिए गीत गाते हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो कौन सा भारत? ये भारत नहीं। अभी तो भारत में बड़े कष्ट हैं, अशांति है, लेकिन वो जो सत्ययुगी भारत है, तो मुझे सारे दिन केवल उस सत्ययुगी भारत की बातें सुननी है और दूसरों को सुनानी है, तो मेरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। कहावत है, खुशी बटोरने से नहीं, लेकिन खुशी बांटने से आती है। आज हम खुशी बटोर रहे हैं, मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले। बाबा ने कहा, बच्चे रॉन्ग। खुशी कभी बटोरने से मिली नहीं, खुशी तो बांटने से मिली है। तो आज से हमें क्या करना है? बांटना। खुशियां बांटिए, सबको बांटिए। छोटा बच्चा मैंने देखा हरदम खुश है, बांट रहा है खुशी। कोई भी गुजरता है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, सब उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश है। तो आज से हमें क्या करना है? हमें अपना चेहरा बार बार दर्पण में देखना है। दर्पण जानते हैं घोषाल बहन? दर्पण, घोषाल बहन अनम्यूट करें। हाँ जी भाई जी। दर्पण जानते? मिरर जी, मिरर। हाँ, आप इंग्लिश मैन है, मैं तो हिंदी मैन हूँ। एक बात है, ठीक है जी। आईना, आईना। हाँ, आईना। तो आईने में वो दुनिया वाला आईना नहीं जो बाजार से खरीद के लाती है, लेकिन अपने मन दर्पण में देखना है। कितने पाप और कितने पुण्य हैं, देख तेरे जीवन में। तो हमें अपने मन में देखना है कि पाप का जो घड़ा है वो भारी है या पुण्य का घड़ा भारी है। तो खुशनुमा जीवन कब होगा? पुण्य का भारी होगा। जब पुण्य का, मुझे पुण्य का खाता बढ़ाना है, मुझे हरेक के लिए दुआएं देनी है। पुराने जमाने में कोई भिखारी भी आते थे ना, भीख मांगने वाले बेगर्स, तो वो कहते थे, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, भगवान के नाम पर दे दो। आप एक दोगे, भगवान आपको 1000 देगा। तो देने वाला कौन है? भगवान है। तो आज से हमें खुशियां बटोरनी नहीं है, लेकिन हमें खुशियां बांटनी है। हमें एक बच्चे के समान, छोटा बच्चा क्या करता है? किसी से कोई बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, 2 मिनट में ओम शांति कर ली, झगड़ा भूल गए। माताजी पिताजी लड़ रहे हैं और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, देखिए। तो आज से हमें क्या करना है? अगर हमें खुशनुमा जीवन बनाना है तो हमें बच्चा बन करके रहना है। इसलिए बाबा मुरलियों में बोलते हैं, बच्चे बच्चे बने रहोगे तो माया से बचे रहोगे। तो मैं बाबा का बच्चा हूं। ठीक है मनीष भाई, समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल समझ में आया। एक हंसी की बात सुनाता हूं, मनीष भाई ध्यान से सुनना। कहते हैं, जब पापा पापा कहते थे तब बड़े मजे में रहते थे। जब पापा पापा कहते थे तब बड़े मजे में रहते थे, और अब पापा पापा कहलाने लगे तो बड़े कष्ट में आने लगे। तो हम क्या कर रहे हैं? बस हम छोटे बच्चे बने रहे। बाबा की उंगली मुझे कभी भी छोड़नी नहीं है। ब्रह्मा बाबा की उंगली मुझे कभी भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि शिव बाबा है बाप और ब्रह्मा बाबा है माँ। तो बच्चा खुश कब रहेगा? बच्चे का जीवन खुशनुमा कब होगा? जो माँ बाप के सानिध्य में होगा। ठीक है? तो सदैव मुझे माँ बाप के सानिध्य में रहना है। देखो, देवताओं की मूर्ति हम देखते हैं। देवताओं की मूर्ति कैसी है? कमलेश बहन बताइए, देवियों की मूर्ति कैसी है? अनम्यूट करें। भाव और भावना
लाइक अभी बोलने वाली हैं, बिल्कुल प्योरिटी एंड और मैं कौन हूँ? मैं होवनहार देवता हूँ। लाइवली। मैं कौन हूँ? मैं होवनहार देवता हूँ। तो देवता खुश क्यों है? क्योंकि देवता माने देने वाले, वो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो मुझे भी क्या करना है? मुझे भी सबको देना है। देने में ही लेना समाया हुआ है, नोट कर लीजिए। जैसे ही देवता के बदले में लेवता बन गया तो खुशी मेरी गायब हो गई। तो इसलिए कभी भी मुझे लेवता नहीं बनना है, लेकिन मुझे सदैव देवता बनना। दीजिए सब। ब्रह्मा बाबा खुशी में तालियां मारते रहते थे, ऐसे करते थे बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा सदैव अपना भविष्य, बाबा क्या बनने वाले हैं, बाबा को कौन मिल गया है, बाबा भविष्य बाबा का कितना सुंदर है। तो यदि हम अपने भविष्य को याद रखेंगे, अभी हम ये याद रखेंगे कि मुझे कौन मिल गया है, तो मेरा सदैव चेहरा खुशनुमा रहेगा। कभी भी मेरे चेहरे पर थकावट नहीं आ सकती। थकावट कब आती है? खुशी कब गायब होती है? मैं बहुत बारी एग्जांपल देता हूं, फ्राइडे इवनिंग मैनेजर एंड मंडे मॉर्निंग मैनेजर। व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए मनीष भाई। फ्राइडे इवनिंग मैनेजर, मंडे मॉर्निंग मैनेजर, अंतर फ्राइडे को वीकेंड शुरू होता है तो मैनेजर को खुशी होती है, मंडे को वापस काम धंधा शुरू होता है तो प्रेशर आ जाता है। तो काम से थके या काम के बारे में सोचने से थकावट आई? काम के बारे में सोचने से। तो मुझे कैसा सोचना है? अच्छा सोचना है। एवरी डे इज अ फ्राइडे। कमलेश बहन, फ्राइडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रवार। और शुक्रवार माने शुक्रिया। हाँ जी, खुदा दोस्त। तो मुझे क्या करना है? शुक्रिया करना है। खुदा दोस्त, हाँ जी, मुझे शुक्रिया। बाबा का, दुनिया में लोग शिकायत करते हैं इसलिए दुखी हैं, दुनिया वाले शिकायत करते हैं इसलिए दुखी हैं, और मैं शुक्रिया करता हूं इसलिए मैं खुश हूं। ठीक है? अनीता बहन, आपका चेहरा दिखता नहीं है, थोड़ा चेहरा तो दिखाइए। अनीता बहन, ओम शांति। ओम शांति, अनम्यूट करिए। यस, ओम शांति भाई जी। आप ठीक हैं अनीता बहन? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया बाबा का। आपने 7 दिन का कोर्स किया? जी। आपने अपने अंदर फोर्स भरा? हाँ। रिवाइज किया कोर्स को? फोर्स कर रही हूँ आगे जाने का। रोज आना, माने कि रोज एक लेसन्स देता है हमें। वेरी गुड। और आपने रिवाइज कोर्स किया, रिवीजन किया कोर्स का? मैं ये कहूंगी कि 8 महीने से मैं बाबा के ज्ञान में हूँ। ओह वंडरफुल, आप तो महारथ ही निकले। नहीं, देखो कोशिश करते हैं बाबा जी। बाबा कहता है ये कोशिश शब्द नहीं कहना है, तो कभी कभी वो आता है, शब्द आता है, लेकिन मैं हमें कोशिश। तो आज अनीता बहन, आप कौन से देश की रहने वाली हैं? मैं मॉरिशस की हूँ, लेकिन स्विट्जरलैंड में रहती हूँ। मैंने सोचा आप कहेंगी आप परमधाम की रहने वाली हैं। आपने ठीक उत्तर नहीं दिया। ये तो बाबा परहैप्स एक दिन हो जाएगा, इसलिए बाबा ने हमें लाया ना। मैं मॉरिशस का रहने वाला नहीं, स्विट्जरलैंड का रहने वाला नहीं, मैं तो परमधाम का रहने वाला हूँ। होएगा एक दिन। हमारे 2 घर हैं, एक परमधाम और एक मधुबन, तीसरा और कोई हमारा घर नहीं है। ठीक है? तो खुशनुमा जीवन कब बनेगा? जब परमधाम घर को याद करेंगे। खुशनुमा जीवन कब बनेगा? मधुबन घर को याद करेंगे। भाई जी, बाबा कहता है हमारे बीच में तीसरा नहीं होना है। थैंक यू बाबा।
देखिए अच्छा हाँ शुक्रिया बाबा। होशियार निकली है। अभी कमलेश बहन, मैं आज 7 दिन के कोर्स को दोबारा करा रहा हूँ आपको। आप रेडी हैं? Yeah, I would like to. कमलेश बहन, हाँ जी। आप कितने समय से ज्ञान में हैं कमलेश बहन, बताइए। वैसे 9 साल के करीब हो गए हैं। I just came into ज्ञान reluctantly, ऐसे आ गई। Okay. My husband wanted to learn meditation and फिर उनको कोर्स समझ नहीं आ रहा था। Okay. Because हिंदी, तो मेरे को बोलते थे कि प्लीज चल और मुझे एक्सप्लेन कर। फिर मैं गई, तो ऐसे ग्रेजुअली आई गॉट इनटू ज्ञान, ऐसे धक से नहीं। पर अभी जब से मैं लेगोस के साथ जुड़ी हूँ, आई एम रियली एंजॉयिंग इट और आई वुड लाइक टू डू इट अगेन द कोर्स। हमारा 7 दिन का कोर्स को कि 8-10 हफ्तों में हुआ था। लाइक वी डिडंट गो 7 days कंटिन्यू। आज मैं दोबारा कोर्स कराता हूँ। तो ये सब पता है। वो 7 डेज का कोर्स मैं एक नए तरीके से कराता हूँ। आपके पास डायरी पेन है? क्या है? सॉरी, डायरी और पेन। वेरी गुड, पास हो गए हैं, पास में दोनों हो गए हैं। मनीष भाई, डायरी पेन इज वेयर? थैंक यू बाबा, सारे विद्यार्थी आगे से आगे निकल रहे हैं। अनीता बहन, डायरी पेन दिखाइए। क्या भाई जी? डायरी नोट पैड। हाँ, मेरे तो कॉपी ये यहाँ पे है। थैंक यू बाबा, पास हो गई हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। क्योंकि अभी यानी कि 1 घंटा हुए आज की मुरली पढ़ रहे थे दीदी के साथ। गुड, बहुत अच्छा। अब हम आज का कोर्स शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम कोर्स शुरू करते हैं रविवार से, ठीक है? रविवार को हिंदी में एतवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला है आपने? रविवार हम कोर्स शुरू करते हैं। 7 दिन का कोर्स 7 दिन में कराएंगे आपको। हाँ जी। तो हम कोर्स की शुरुआत करते हैं रविवार से, संडे से। और संडे से, ठीक है। ठीक है? आप तो इंग्लिश मैन है, मैं तो हिंदी मैन हूँ, ठीक है? नहीं, हिंदी आती, अच्छी आती है। I'm from Delhi। थैंक यू बाबा, आप दिल वाली हैं इसलिए दिल्ली वाली हैं। तो रविवार को एक और नाम देते हैं एतवार। हाँ जी। क्या बोलते हैं? एतवार। तो एतवार का कोर्स है बाबा की बातों पर एतवार करिए, तभी खुशनुमा जीवन बनेगा। जो बाबा ने कहा, हाँ जी बाबा। ठीक है मनीष भाई? अब ये नहीं बाबा ने ये क्या बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया, बाबा को ऐसे नहीं बोलना। नहीं, भगवान को मैं करेक्शन नहीं कर सकता हूं। तो रविवार का कोर्स कौन सा हुआ भाई और बहनों? बाबा की बातों पर एतवार का। और रविवार के बाद आ गया सोमवार। क्या आ गया? सोमवार। ओके, कोई बात नहीं। तो अगला दिन आया सोमवार, और सोमवार का लेसन सोम रस मुझे पीना और पिलाना है, खुशनुमा जिंदगी तभी रहेगी। सोम रस माने अमृत। अमृत माने ये बाबा की मुरली है, अमृत। ये बाबा की मुरली क्या है? ये सोम रस है। शिव बाबा सोम रस पिलाते हैं, इससे आत्मा को बहुत बल मिलता है, आत्मा को बहुत खुशी मिलती है, आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है? तो रविवार माने बाबा की बातों पर एतवार करना है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति और प्रीत बुद्धि विजयंती। और सोमवार माने बाबा सोमनाथ हैं, और सोमनाथ बाबा मुझे सोमरस पिला रहे हैं। बूंद बूंद करके उस सोमरस को मुझे अपने अंदर ले जाना है। और आज आया मंगल, तो बाबा से मुझे मंगल मिलन मनाना है। खुशनुमा जीवन, हरदम बाबा से मिलन, बाबा और मैं और बाबा। इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, बस बाबा मेरे हैं और मैं बाबा का हूं। दादी जानकी जी कहती थी, मैं सागर में ऐसा गोता लगाती हूं जो
दुनिया के लिए मैं मर गई और मेरे लिए दुनिया मर गई। तो खुशनुमा जिंदगी कब होगी? जब मेरा संसार बाबा हो जाएगा। तो सवेरे से लेकर रात को सोने तक बस बाबा के साथ मंगल मिलन मनाना है। हर दम बाबा और मैं, बाबा और मैं, हर बात बाबा से करनी है। ठीक है? और फिर कल है बुधवार। बुध, मनीष भाई, बुध समझते हैं ना? वेंसडे को बुधवार बोलते हैं हिंदी में। तो बुध माने किसी न किसी की बुद्धि का ताला मुझे जरूर खोलना है। सेवा, क्योंकि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। सेवा की मेवा है खुशी। आज दुनिया में लोग नौकरी करते हैं और हम बाबा के बच्चे सेवा करते हैं। मालती बहन, मालती बहन, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक है सेवा, एक है नौकरी। दोनों में क्या अंतर है बताइए? थोड़ी परीक्षा ले लो मालती बहन की। भाई जी, जो नौकरी है वो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, उससे थोड़ी खुशी मिलती है। और सेवा जो है उससे हमें बहुत आंतरिक खुशी मिलती है, वो निस्वार्थ सेवा होती है। आप कौन से देश की रहने वाली मालती बहन? शारीरिक तौर से मैं भारत की रहने वाली हूँ। शारीरिक तौर से भारत की रहने वाली हूँ और आत्मिक तौर से मैं परम धाम वासी हूँ। अच्छा, भारत की रहने वाली है। अभी वहां लेगोस में रहती है? अभी नहीं, इटली में हूँ बाजी में। अच्छा, इटली में है आप? जी। रोम? रोम नहीं, ब्रेशिया है इटली में। रोम कैपिटल है इसकी। इटली का तो बड़ा नवाचार सुना है, बहुत सुंदर देश है अभी कलयुग के हिसाब से। बाकी तो भारत ही सबसे सुंदर है। जी, भारत सुंदर है। मालती बहन, अपनी आयु बताओ। मेरी आयु 50 इयर्स। मैंने तो 50 वाली पूछी नहीं। भारत में कहते हैं बहनों से शरीर की उनकी आयु न पूछे और भाइयों से कभी उनकी आय माने इनकम न पूछे। इनकम न पूछे। तो मैंने आपकी शरीर की आयु नहीं, हाँ, मैंने तो ज्ञान की आयु पूछी थी। ठीक है भाई जी। ज्ञान की आयु मेरी है भाई जी 4 साल हुए हैं अभी मेरे को। अब 4 साल का बच्चा कभी दुखी हो सकता है? नहीं। 4 साल का बच्चा टेंशन में आएगा? नहीं भाई जी। 4 साल का बच्चा परेशान होगा? बिल्कुल नहीं। तो खुशनुमा जीवन जीने की कला अपनी डायरी में लिख लीजिए, मेरी आयु 4 बरस। जी, बाबा, थैंक यू बाबा। ठीक है? तो हमें सेवा करनी है। जब तक हम दूसरों की बुद्धि का ताला नहीं खोलेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब तक मेरे जीवन में खुशी आने वाली नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सेवा करते करते क्या होता है? सेवा मेवा मिलता है, की दुआएं मिलती है। दुआएं मिलती है। सेवा करते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता है। सेवा करते हैं तो हमें संस्कार मिलाने की कला आ जाती है। तो इसलिए बाबा के घर में जाकर के हमें सेवा करनी है। अभी सेंटर खुल गया है, लाइट हाउस। भाई जी, सेंटर यहाँ से बहुत दूर है। मैं ये सोचती हूँ मेरे को सेवा नहीं मेरे से होती है। मेरे को बार बार बाबा बोलते हैं ना, सेवा करो सेवा। सप्ताह में 1 दिन जाओ मालती में। बहुत दूर पड़ता है। महीने में बनाओ। ठीक है। बाकी मनसा सेवा करती हूँ, जैसे थोड़ी सा कास्ट करती हूँ। अगर सेंटर नहीं जा सकते तो अपने पास पड़ोस में जो लोग हैं उनकी बुद्धि का ताला खोलना है मुझे। भाई जी बहुत सुनते नहीं है। वो कम्युनिटी दूसरी है ना, वो दूसरे धर्म के हैं, वो तो बिल्कुल ही बस सुनते नहीं। मालती बहन क्यों नहीं सुनते हैं? हो सकता है मालती बहन की बात वो न सुने। जी, ठीक है जी। हो सकता है वो ब्रह्मा कुमारी की बात न सुने। जी, इफेक्टेड होते हैं। बात सुनने के लिए मना कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी की बात सुनने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन भगवान की बात कोई न सुने, ये असंभव है। तो आपको मालती के रूप में ज्ञान नहीं देना, ब्रह्मा कुमारी के रूप में ज्ञान नहीं देना, लेकिन आपको ज्ञान देना है भगवान का। भगवान और कहते हैं सबका मालिक एक। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। तो जब हम मानवीयता का ज्ञान देते हैं, जब हम अपने दिल से कोई बात उनको सुनाते हैं, जब हम आत्मिक रूप में ज्ञान देते हैं, तो आत्मा न ईसाई है, न आत्मा क्रिश्चियन है, न आत्मा मुसलमान है,
न आत्मा हिंदू है, आत्मा तो भाई भाई है। तो भाई भाई की बात न सुने हो नहीं सकता। जी बात, जी तो आज आप लक्ष्य रखना मालती बहन कि कम से कम मुझे एक व्यक्ति की बुद्धि का ताला खोल। ठीक है, आप देखेंगे आपको बहुत खुशी हो जाएगी, बाबा की दुआएं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ठीक है भाई जी। रविवार माने एतवार माने बाबा की बातों पर एतवार जी बाबा, खुशी आ जाएगी। और सोमवार माने बाबा है सोमनाथ और मुझे पीना है सोमरस। सोमरस माने बाबा की मुरली बार बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते रहिए, घोटा लगाइए। दादी जानकी जी कहती थी मैं तो आत्मा की चटनी बना देती हूँ। चटनी बनाना माने बार बार पढ़ना है, तो खुशनुमा जीवन हो जाएगा। और फिर मंगल माने बाबा के साथ मंगल मिले। कभी सजनी बन जाइए, कभी बच्चा बन जाइए, कभी सखा बन जाइए, कोई संबंध से बाबा को हरदम याद करते हैं। ठीक है, और बुध माने बुद्धि का ताला, किसी न किसी की। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक मुझे खुशी मिलने वाली नहीं। और अब आ गया गुरुवार, तो मुझे क्या करना है? सतगुरु बाबा ने मुझे गुरु मंत्र दे दिया है, तो मुझे क्या करना है? गुरु मंत्र का कुछ भी हो जाए, सास ने कुछ कहा, बहू ने कुछ कहा, किसी पड़ोसी ने कुछ कहा, ओम शांति, फुल स्टॉप, पुट ए फुल स्टॉप। हमारी खुशी कब गायब होती है? खुशनुमा जीवन कब नहीं होता है? क्यों बोला ऐसे, क्यों बोला, ये हिम्मत क्यों हुई? बाबा कहते बच्चे आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव। बस मन ही मन में बाबा का ध्यान चलता रहे। इसलिए मीरा के लिए कहते हैं, मीरा को विष के प्याले मिल गए, लेकिन मीरा ने वो भी भगवान का याद करके श्री कृष्ण की याद में पी लिया और वो विष अमृत हो गया। इसका क्या अर्थ है बताइए? प्रशांत भाई कौन बैठे हैं जो मालती बहन के बाजू में है? प्रशांत कुमार, क्या नाम है आपका? प्रसन्न कुमार भाई। प्रशांत भाई या मैं प्रसन्न भाई, मेरा नाम प्रसन्न भाई। प्रसन्न, आप प्रसन्न हमारा विषय है और आपका नाम ही प्रसन्न है। भाई ताली तो बजाए प्रसन्न भाई के लिए। मैं भी ताली मारता हूँ भाई साहब। भाई साहब मैं पूरा आपका सुन। हाँ जी, कौन से देश के रहने वाले प्रसन्न भाई है? मैं लागोस में है भाई, लाइट हाउस का बाजू में है भाई। अरे वाह, नजदीक आप तो बाबा के पड़ोसी हैं। तो आप कितने बारी मुस्कुराते हैं एक दिन में प्रसन्न भाई? जी भाई, एक दिन में कितने बारी मुस्कुराते हैं आप? ऐसा तो गिनती नहीं है भाई। अभी ज्ञान में आके एग्जैक्टली 1 ईयर हुआ है। 30 जनवरी से अभी 2 तारीख हो गया, एग्जैक्टली 1 ईयर कंप्लीट हुआ ज्ञान में आके रखे। थैंक यू। और लास्ट ईयर सरस्वती पूजा को गौतमी बहन ने, और अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सुंदर। और आपने जब से हमको IAS बना दिया है तभी तो हमारा और खुशी बढ़ गया है। थैंक यू बाबा। ठीक है प्रसन्न भाई, तो हमें क्या करना है? मन मना भव रहना है। बस मन ही मन में बाबा को याद करते रहिए। बाबा कहते हाथ काटे और दिल यार्डे, हाथों से काम करते रहिए और दिल से बाबा को याद करते रहिए। मन मना भव मध्याजी भव, मुझे विष्णु की दुनिया में जाना है। प्रसन्न भाई, आज बाबा ने 2 मालाएं बताई। कौन कौन सी मालाएं? जरा नकल नहीं मारना, अकल से सुनाना। 2 मालाएं आज का मुरली में जी। आपने कमलेश बहन अनुशासन, डिसिप्लिन, जिससे पूछेंगे वही उत्तर देंगे। प्रसन्न भाई उत्तर देंगे। आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया प्रसन्न भाई? नहीं, आउट ऑफ नहीं हुआ, सडन नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन था कि मुरली में बाबा ने आज 2 मालाएं बताई। जी भाई जी, रुद्रमाला और विष्णुमाला। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं।
पास Thank you, बाबा। पुत्री है मालती बहन, एक रुद्र माला माने आत्माओं की माला और एक विष्णु माला माने देवताओं देवी देवता जो बनेंगे, जाना है जहां जिसका अणु भी नहीं है, वो है विष्णु की दुनिया। तो मुझे क्या करना है? मुझे विष्णु की माला की दुनिया में जाना। मध्या जीवा माने इधर ब्रह्मा, इधर विष्णु, फिर शंकर। मुझे विष्णु को याद करना है क्योंकि मुझे उस दुनिया में जाना है। ठीक है। और अगला दिन आया शुक्रवार, तो शुक्रवार का कोर्स है शुक्रिया बाबा। सारे दिन बाबा का शुक्राना करना है। जो शुक्राना करेगा वही मुस्कुराना करेगा, अगर शुक्राना नहीं तो मुस्कुराना भी नहीं। इसलिए बाबा ने अपना बना के हमें मुस्कुराना सिखा दिया है, क्योंकि हम हर एक का शुक्राना, दुनिया में लोग शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। लेकिन बाबा कहते बच्चे आपको कोई शिकायत नहीं करनी, आपको शुक्राना करना है। थैंक यू बाबा। मैंने दादी जानकी जी से पूछा, दादी आप कैसे योग करती हैं? कहते मैं तो कुछ नहीं करती, सारे दिन थैंक यू बाबा बोलती हूँ, यही मेरा योग है। तो आज से हम क्या करेंगे? खुशनुमा जीवन कब बनेगा? शुक्रिया, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, इतना सुंदर जीवन बना दिया बाबा, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बिठा लिया। वाह। तो ये सारे दिन गीत गाते रहिए। गीत सुने होंगे ना अपने बाबा के, कितने प्यारे प्यारे गीत है। बाबा का एक गीत है, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले। प्रसन्न भाई आगे की लाइन गाए। नहीं, मैं थोड़ा गाना मेरे को याद नहीं रहता है भाई, इंटरेस्टेड है बट याद नहीं रहता। भगवान के गीत तो याद रखा करो। चलिए सुशीला बहन से पूछता हूँ। सुशीला बहन, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, मुस्कुरा के गाओ आगे की लाइन। देखो सुशीला बहन को याद है कि नहीं? हेमलता बहन, थोड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी ना बीच बीच में मुझे। हेमलता पाटिल बहन, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले। हाँ, वीडियो ऑन करो। मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, दिल तेरा आभार करे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें आज से कोई शिकायत नहीं, न सास की शिकायत, न बहू की शिकायत, न पड़ोसियों की शिकायत, बस शुक्राना और मुस्कुराना। ठीक है। और शनिवार को क्या करना है? शनिवार को दान करते हैं। भारत में कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। शनि को बहुत दान करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे सब विकारों का दान कर दीजिए, सब विकारों को। खुशी क्यों नहीं है? जब तक विकार मेरे अंदर हैं तब तक खुशी मेरे पास आ नहीं सकती है। तो यदि मुझे खुशी चाहिए तो मुझे, बाबा कहते बच्चे प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। बच्चा क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि बच्चा पवित्र है। बच्चा क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि बच्चा वर्तमान में जीता है। तो यदि हमें खुशनुमा जीवन चाहिए तो हमें सदैव वर्तमान में जीना है। यदि हमें खुशनुमा जीवन चाहिए तो पवित्रता को धारण करना है। ठीक है। खुशी कब आएगी हमारे जीवन में? ये 7 दिन का कोर्स मुझे पक्का कर लेना है। एतवार, इतवार, रविवार माने बाबा की बातों पर एतवार, हंसी बाबा, संशय बुद्धि नहीं, तो खुशनुमा जीवन। और सोमवार माने सोमनाथ बाबा सोमरस पिला रहे हैं,
बस सोमरस पीते जाइए और खुश होते जाइए, और मंगल माने बाबा से मंगल मिलना, एक क्षण भी बाबा से दूर नहीं जाना। भारत में भक्ति मार्ग में कहते हैं, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम या श्वास को आवन होए न होए। मुझे पता नहीं है कौन सी श्वास मेरी अंतिम श्वास होगी, इसलिए श्वास आई बाबा को याद करिए, फिर श्वास आई फिर बाबा को याद करिए, ठीक है। और बुद्ध माने सेवा करनी है, ताला खोलना है, और गुरु मंत्र जाप करते रहना है। सतगुरु बाबा ने बहुत सारे मंत्र दिए हैं, ओम शांति का मंत्र, मन मनाभव का मंत्र, मध्याजीव का मंत्र, बस उन मंत्रों का अंतर जाप करते रहे, ठीक है। और फिर शुक्रवार माने शुक्रिया, शुक्राना और मुस्कुराना। कभी भी कोई बात की शिकायत नहीं है, क्योंकि जहां शिकायत होगी वहां खुशनुमा जिंदगी हो नहीं, वहां दुखी जिंदगी हो जाती है। दुनिया के लोग किस लिए दुखी हैं? पैसे की कमी नहीं है, कार की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन शिकायत मुझे ये नहीं मिला। तो आज से हमें क्या करना है? मुझे क्या मिला है। और शनि माने दे दान, तो दे दान छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा है बच्चे सब विकारों का दान दे दो, सब बुराइयों को छोड़ दो, बुरी बातें न बोलनी है, न देखनी है और न सुननी है। गांधी बापू ने 3 बंदर बताए थे, न बुरा बोलो, न बुरा देखो और न बुरा सुनो। लेकिन बापू के भी बापू शिव बाबा ने 5 बंदर बताए। हमारी रागिनी बहन बताएंगी 2 और बंदर कौन से हैं रागिनी बहन? ओम शांति, अनम्यूट करिए रागिनी बहन। बाबा ने 5 बंदर दिए हैं, बापू के बापू ने। हाँ, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति, थोड़ी बुलंद आवाज में बोलो। ओम शांति भाई। शिव शक्ति है। हाँ जी, ओम शांति भाई। ओम शांति रागिनी बहन। ओम शांति भाई। आप कहाँ की निवासी हैं रागिनी बहन? मैं परम धाम की निवासी हूँ भाई। हाँ, वो तो आत्मा का, शरीर का निवास स्थान। मैं ऐसे इलाहाबाद की हूँ पर लागोस में रहती हूँ। अरे वाह, वो तो आप उसको इलाहाबाद कहती है, मैं उसको प्रयागराज बोलता हूँ। हाँ भाई, अभी नाम चेंज हो गया, अभी प्रयागराज हो गया। और मैं उसको संगम तीर्थ बोलता हूँ। हाँ, संगम। आजकल वहाँ माघ मेला लगा हुआ है। हाँ, अभी बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है अभी। आजकल वहाँ कल्पवास कर रहे हैं लोग। कल्पवास माने जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, 1 महीने के लिए पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने सब दुनियादारी, कारोबार, व्यापार, बिजनेस सब छोड़ के वहां टेंट सिटी बसाया है। तो वहां टेंट में रहते हैं, केवल भगवान को याद करते हैं। तो आप कल्पवास करती हैं रागिनी बहन? नहीं भाई, मैंने नहीं किया है। तो अभी तो बाबा कल्पवास करा रहे हैं, माने दुनिया में रहते हुए भी एक बाबा से बुद्धि की तार। अब बताइए रागिनी बहन, मैंने क्या प्रश्न पूछा आपसे? बापू के 3 बंदर थे, बाबा के कौन से जो है 5 बंदर हैं? बताइए। आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बोलना भी नहीं है और किसी के बारे में सोचना भी नहीं है बुरा। हाँ, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? न बुरा सोचो, ठीक है? न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो और अंतिम न बुरा करो। तो अब हो गए 5 बंदर बापू। तो हमारा जीवन खुशनुमा कब बनेगा? जब इन 5 चीजों को हम ना कर देंगे। थिंक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। तो ये 5 बंदर बापू के भी बापू माने शिव बाबा के याद रखने हैं, ठीक है? और शिव बाबा ने क्या किया है?
शिव बाबा ने फैक्ट्री लगा के दी है हमको, ठीक है। हमारी कमलेश बहन, मालती बहन, प्रसन्न भाई, रागिनी बहन, सबको मालिक बनाया है फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री में मेरा जो बुद्धि है वो फैक्ट्री की मैनेजर है। ध्यान से सुनना, बाबा ने मुझे फैक्ट्री लगा के दी और फैक्ट्री का मैनेजर कौन है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, और कर्मचारी कौन है, मन, ठीक है। अब बाबा कहते हैं बच्चे आपकी फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। खुशनुमा कौन रहेगा, जिसकी फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। तो प्रसन्न भाई बताइए, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री? यस भाई, नाइजीरिया में जो सेटिस्फैक्ट्री होता है उसको बोलते हैं वेल डन। इवन थैंक यू कम बोलते हैं और वेल डन ज्यादा बोलते हैं, तो मैं तो वेल डन ही बोलूंगा। तो आपका सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट? बिल्कुल 100%। थैंक यू बाबा। रागिनी बहन, फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री? हाँ भाई, सेटिस्फाई है सब बाबा। कभी युगल से थोड़ी तकरार हो जाती हो? अरे नहीं भाई, वो तो इतने सीधे है, कुछ नहीं बोलते, ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन मैं ज्ञान में चलती हूँ, कुछ बोलते नहीं है। तुम जो करना है करो, मुझे नहीं बोलो, और कुछ बोलते भी नहीं है। जलेबी की तरह सीधे हैं? जलेबी की तरह? नहीं, जलेबी की तरह नहीं सीधे, वो एक्चुअली सीधे। कभी सास से, कभी ननद से पंगा होता हो? भाई मैं तो लागोस में रहती हूँ, सास है भी नहीं, ननद के पास रहती नहीं, तो कुछ नहीं है भाई। चलो बच गए हैं, थैंक यू बाबा। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू बाबा की परिवार बहुत अच्छा है, मेन युगल बहुत अच्छे मिल गए हैं। तो आपको सत्युग में भी यही युगल चाहिए, तो इनको भी बीके बनाओ, वरना तो दूसरे युगल मिलेंगे सत्युग में। कोशिश करती हूँ भाई, कुछ कुछ ज्ञान की पॉइंट सुनाती हूँ। कोशिश नहीं, संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्ट्रियों का मालिक आपको बना रहा हूं। बाबा ने हमें 3 फैक्ट्री दी है, तो हमें सिर में कौन सी फैक्ट्री रखनी है? सिर में आइस फैक्ट्री। और कूल 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 बोलते हैं ना, आजकल दिल्ली कूल 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 है, बहुत ठंडा है इधर, अच्छा लगता है। तो सिर में कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री। और मुख में कौन सी फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री। सदैव मीठा बोलना है। और दिल में कौन सी फैक्ट्री? बोलिए। गुड की फैक्ट्री, प्रेम की, लव, दिलाराम की फैक्ट्री। हनी हनी दिल में दिलाराम की फैक्ट्री। लव फैक्ट्री। कौन सी? दिल में दिलाराम की फैक्ट्री है जी? दिल में दिलाराम की फैक्ट्री। समझ में नहीं आ रहा, एक साथ बोल रहे ना सभी लोग। शुभ संकल्पों की फैक्ट्री। शुभ संकल्पों की फैक्ट्री। और बताएं? दिल में दिलाराम की फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, और दिल में लव फैक्ट्री। लव फैक्ट्री। लव फैक्ट्री जी। ओके, तो आज बाबा ने आपको 3 फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया, और खुशनुमा जीवन के लिए फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री। चलो, अभी तो टाइम हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे मिलके। अब आपको जल्दी दिल्ली बुलाएंगे। आज बाबा ने बोला दिल्ली तो कैपिटल है, कैपिटल रहेगी, और हम तो यमुना नदी के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं यहाँ। तो आपको यमुना नदी दिखाएंगे, जहां कृष्ण की द्वारिका बनने वाली है। ओके? हाँ जी, ओके। भाई जी, दिल में कौन सा फैक्ट्री? थैंक यू भाई। लव फैक्ट्री। ये देखिए, आइस फैक्ट्री माने कूल कूल कूल, ठंडा रखना दिमाग को, ठीक है। स्वीट शुगर फैक्ट्री। और दिल में लव, सबको प्यार बांटिए, बस प्यार ही प्यार, और कुछ नहीं देना है। ओके? तो अब तीनों फैक्ट्रियों का
रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी होगा तो मेरा जीवन खुशनुमा भाई जी ओम शांति। एक और फैक्ट्री याद आई। याद रहेगी ना? हाँ, एक और फैक्ट्री याद आई, पीयूष फैक्ट्री, पिया के साथ इश्क करने की फैक्ट्री। जी भाई जी, ये फैक्ट्री बहुत अच्छा है। बाबा के साथ कैसे इश्क करते हैं वो फैक्ट्री आपने आज बताई हमें। चौथी फैक्ट्री हमको मिल गई। थैंक यू भाई। अमृत सिंह। पीयूष और पिया के साथ। थैंक यू। चलिए अभी हमारी बहन बहुत थैंक्स, अभी टाइम हो रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच थैंक यू भाई। मिलते रहेंगे। आप मथुरा के हैं ना ब्रदर? आप मथुरा के हैं ना? जी। आप मथुरा के, तो मथुरा के पेड़े कितने मशहूर हैं। आई रिमेम्बर लिसनिंग टू यू फर्स्ट टाइम। सो आपने अपना थोड़ा बताया था ना अनुभव, कैसे मथुरा से मधुबन पहुंचे, लाइक यू हैड नो जॉब एंड सो आप में भी बहुत मिठास कूट कूट के भरी हुई है मथुरा के, बिकॉज ऑफ मथुरा के पेड़ उससे। जब आप दिल्ली आएंगे तो मथुरा जी के पेड़े खिलाएंगे आपको। जरूर जरूर, आपको मिल के बहुत आज ही मिल गए भाई जी सारे पेड़े। ओके थैंक यू भाई। थैंक यू। ओम शांति। वेल डन भाई, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। ओम शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अपने वीडियो ओपन करके दृष्टि ले सकते हैं और आपको थैंक यू करेंगे बाबा को एक फॉर दिस फैक्ट्री, फॉर 7 days course and for everything. ओम शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। शांति भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। आज आपने मंगल मिलन मनाया बाबा से हमारा। मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू, वेरी वेरी वेल डन भाई, वेल डन बाबा, थैंक यू। Shanti, have a good day. See you tomorrow. Om Shanti. अभी 3 फैक्ट्री को देखभाल करना है मनीष भाई। हाँ जी। So see you tomorrow. वेल डन। Have a nice day. प्रसन्न भाई, आपका घर है पीछे ना ऑफिस? ये ORS का गेट है, जो दिल्ली से कोई प्रोग्राम किए थे तो उनका गेट को मैं चोरी किया। अच्छा। ORS दिल्ली से बाबा का गेट बनाया, डेकोरेशन था तो मैंने कॉपी किया। अच्छा अच्छा अच्छा।